get you updates from the rescue operation in Uttarkashi. It's the final leg of the rescue operation as the officials have all preparations in place to assist the trapped workers once they are pulled out. However, the difficult terrain continues to pose certain challenges to the rescue teams. The tunneling experts have confirmed that the auger machine responsible for the horizontal drilling from Silkyara end broke down late last night, which has further delayed the rescue operation. They assured that all efforts are being taken to get the machine up and running as soon as possible to continue the horizontal digging process to get to the trapped workers. Like, we're only just meters away from having a passage for our children to come back, but the machine is run out of, it's like a little bit broken, and also we've hit things that we were hoping we wouldn't hit, and the things that we hit, they're like machines, like you see the big machine up on the hill. There's one of them in there. There's a big dumper in there. There's all these machines, and there's the crushed tunnel. So we're trying to find a path through all of this and the rocks and everything. Almost we've done it, but we seem to have hit something. So we've paused. The machine's being repaired right now. It should be back in operation tomorrow. In fact, Times Now was the channel which was present on spot when the horizontal drilling was briefly halted due to breakdown of the American auger machine. The experts confirmed it would take a few hours from then to get the machine fully functional once again. दरअसल ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल की गई थी, जहां से वो आगे जो है वो सुराख करके ड्रिल करके उसके बाद जहां से लोहे के पाइपों को इंसर्ट किया जा रहा था, दरअसल वो प्लेटफॉर्म टूट गया। चूंकि काफी ज्यादा मशीन पर प्रेशर पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे पीछे सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार है और आपको बार बार बीच में जेसीबी मशीनें आती जाती दिखाई देंगी। मेरे स्क्रीन के इस हिस्से में जरा हरिंदर दिखाइए, ये पीली सी अगर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये अब से 1-1.5 घंटे पहले इस गाड़ी को मंगाया गया था जिससे वो कंक्रीट बनाए और उस मटेरियल को रेडी करे जिससे उसका प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो सके। 6 से 7 घंटे लग सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को रेडी करने में। इस बीच जानकारी ये भी है कि संभवतः जब तक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा हो तो क्या एनडीआरएफ के जवानों द्वारा मैनुअल ड्रिलिंग की जा सकती है, इस बात पर भी मंथन हो रहा है। लेकिन हाँ, तेज गति से काम तभी होगा जब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी, और ऑगर मशीन तभी अपना काम करना शुरू करेगी जब जिस प्लेटफॉर्म पर, यानी जिस चबूतरे पर आप कह सकते हैं, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं अगर कहूं तो जिस चबूतरे पर वो इंस्टॉल की गई थी उस चबूतरे को एक बार फिर से रिपेयर किया जा सके, उसके बाद उस पर हम इंस्टॉल करें, तब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी। क्योंकि हम इस ऑपरेशन के आखिरी दौर में हैं, कुछ मीटर की दूरी है, और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं यहां से जा रहा था तो अर्नोल्ड डिस, जो टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिनको खास तौर पर बुलाया गया है इस पूरे मामले में सहयोग के लिए, दिशा निर्देश के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, कंसल्ट जो किया जा रहा है लगातार, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये पहाड़ मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। दिस माउंटेन इज वंडरिंग मी। पता नहीं इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये था कि कभी कोई मेटल आ जा रहा है, कभी स्टील के कुछ पार्ट्स आ जा रहे हैं, तो बहुत कुछ है इस पहाड़ के अंदर, ये अर्नोल्ड डिस के कहने का मतलब था। और शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि मशीन पर प्रेशर ज्यादा, और इसकी वजह से प्लेटफॉर्म, चूंकि आप देखिए प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। However, once the drilling is successful and 15-member NDRF team will enter the tunnel carrying helmets, gas cutters and oxygen cylinders with them, the trapped workers will not be taken out immediately as there would be a difference between inside and outside temperatures. Due to fatigue for so many days, the workers experienced weakness and they will be taken out through trolleys. Chief Minister Dhami and Union Minister VK Singh also reached the spot and spoke to the trapped workers. गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर?
चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ सब लगे हैं बिल्कुल, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था करेंगे। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक। Well, authorities have prepared a detailed post-rescue action plan once the workers are out of the tunnel. The 41 men will be immediately provided with medical care. Ambulances have already reached outside the tunnel. The moment they are rescued, they will be taken to the health center through a green corridor. A 41-bed ward has been created at the community health center in Chinyalisore. If necessary, they will be taken to Rishikesh. Now, a detailed medical examination of the workers will take place at the hospital. एम्बुलेंस वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। जो भी क्रिटिकल पोजीशन होगा तो उसके अनुसार से पहले तो हमें यहाँ हॉस्पिटल ले जाने की कर रखा है व्यवस्था है, और यहाँ एम्बुलेंस और स्ट्रेचर वगैरह सारी चीजें हैं, और उसको ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग घटना स्थल से और हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। यदि ऐसा लगा कि डॉक्टरों के रिकमेंडेशन में कि कुछ जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी तबीयत खराब है तो उनको हेली लिफ्टिंग किया जा सकता है। हेली लिफ्टिंग करके क्या ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा? हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी जहाँ सुविधा है वहीं उनको भेजा जाएगा। तो क्या ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है? सब अलर्ट मोड पे, पूरा प्रदेश जो है इस समय ऑन द टो है और सभी लगे हैं कि किसी तरह से ये काम सक्सेसफुली पूरा हो जाए। एम्स ऋषिकेश में फिलहाल तो देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तभी उन पेशेंट्स को यहाँ पे लाने का भी प्लान है। वैसे जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उत्तरकाशी में, वहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है। पेशेंट जो भी अगर कैजुअलिटी या कोई भी पेशेंट वहाँ पे जो होगा सबसे पहले वहीं आएंगे। फिलहाल के लिए 20 बेड तो हमने ट्रॉमा सेंटर के रखे हुए हैं जो डिजास्टर बेड हैं। उसके बाद हमने जो हैं 6 ICU बेड रखे हुए हैं और हमारे पास कुछ 30 के आसपास जो है MS पूल के बेड होते हैं, वो भी मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी हम उनके लिए दे सकते हैं।